Yeah. Very nice, very good. So any question? कैसा लग रहा है? I think आज ही अपना last हो जाएगा. So there are only 5 pages for us to read. Yeah. So should we start the reading? Yeah. Or do you have any question? Acha, after the reading, we'll take the takeaways. Not take the takeaways, but we'll talk about the things that you feel you will be following from the book. Okay? Yeah. So I'll share the screen and. प्रिया जी बहुत अच्छे लग रहे हो, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you. वेरी नाइस. Thank you. ब्यूटीफुल. Thank you. आज स्किट सेशन में भी ना हमने ऐसे ही कुछ कर लिया था, मैजिक लगा दिया था. ओके, सो आई थॉट इंस्पायर्ड बाय तुलसी. ठीक है, सो आई थॉट पावर में भी लगा लेते हैं. आई थॉट तुलसी के पीछे बहुत सारी बुक्स दिख रही हैं, सब कुछ है. फर्स्ट आई थॉट लेट मी पुट द फीलिंग्स वाला चार्ट, देन आई थॉट लेट मी पुट पावर ऑन. यार पावर का लास्ट है, आई फील नाइस लुकिंग एट पावर. यस, सो हां, लेट्स स्टार्ट. लग रही है. भी पीछे 2 बुक्स हैं, पावर, मैजिक. ऐसा लग रहा है एक्चुअल की रखी हुई है ना? यस, चलिए स्टार्ट करें. हाँ एकदम. क्या द पावर एंड लाइफ. Yeah, this is the last chapter of this amazing book. Okay, and here we are seeing, of course, ये आपको यहाँ पे तो ये तो सबको ही समझ में आ गया है. आपको क्या लग रहा है, ये force of love है, ये वो power है? Because I'll mute you while you are not reading. Is that okay? Yeah. Yes, yes. I think there's some. Yeah. So ये आप ये भी सोच सकते हो कि ये this is the supreme power. And actual में अगर हम लोग ऐसे सोचें that we are that small अंश, that our आत्मा is a small अंश of that परमात्मा, और ultimately हमको ये steps पर चढ़ के उनके पास जाना है. आप ऐसा सोच सकते हैं. एंड आप देखो, अगर हम लोग जैसे जैसे स्टेप पे जा रहे हैं, are these the flowers that have bloomed for us, or are these the flowers that we have blossomed because of our gratitude and love? And जहां जहां पे ये लाइट पड़ रही है, are these the landmarks that we have achieved because of love? Like what is it? What is this all about? ये जो long and passage है with full of steps जहां तक जा रहा है, is it love which will guide us to reach this supreme power or the light? What is our destiny? What we are supposed to do, and why is this power important in our life? We are going to read all about this. Yeah. Yes. A human being cannot imagine not existing. We can imagine our body not being alive, but we simply cannot imagine not existing. Why do you think that is? Do you think it's a fluke of nature? It's not. You cannot imagine yourself not existing because it's impossible for you not to exist. If you could imagine it, you could create it, and you can never create it. You have always existed, and you will always exist because you are a part of creation. ये आपको लग रहा है कुछ, ये क्या लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है. एग्जिस्ट कर रहे हैं बट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये सब थोड़ा सा ऐसा कुछ कुछ लग रहा है. बट इफ यू एक्चुअली रीड द होल पैराग्राफ इज काइंड ऑफ, जो सबसे अच्छे से समझ में आ रहा है इज इन दिस लाइन. You have always existed and you will always exist because you are a part of creation. आपको लग रहा है कि ये कहाँ से है? Like what is this? You have always existed. You means like जो हम you बोलते हैं वो क्या है? Is it this body or is it this soul? Universe. Soul, exactly. Soul. It is the soul. You have always existed and you will always exist because you are a part of creation. तो आप समझ गए, ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही एक पार्ट है, right? This love, this power that we have is a small, teeny tiny part of this big supreme power, the big परमात्मा. और इसलिए इसका मतलब तो यही हुआ ना, परमात्मा को तो कोई खत्म नहीं कर सकता, उसके अंश को कोई खत्म नहीं कर सकता. That is why we will always exist. ठीक है, we simply cannot imagine not existing. अब अगर हम लोग फिर से ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, संगीता जी प्लीज रीड अगेन, then you will understand. A human being cannot imagine not existing.
We can imagine our body not being alive, but we simply cannot imagine not existing. Yes. So Why our do you body, think that is? once again, we can imagine our body not being alive. हम लोग तो हिंदूज में ये बहुत अच्छे से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? जो लोग ये नहीं जानते हैं वो लोगों को लगता होगा कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बट फॉर अस इट इज लाइक हम लोग को हमेशा से ही पता है ना. व्हाई इज इट दैट वी फील कि ये जो हमारे लाइफ से चले गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में ही वापस आएंगे, या जब हम जाएंगे तो वो जहाँ पे है वो सोल अब जाके जहाँ भी रीबर्थ ली है वो वहीं हमको भी जाना है. बिकॉज जो एक कनेक्शन रहता है वही लोगों का नेटवर्क दोबारा भी मिलता है लाइफ में. आज हमारे लाइफ में वी रेड इट इन द प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो, आई डोंट रिकॉल व्हिच चैप्टर वाज इट, दैट जो भी हमारे लाइफ में है, वेदर इट्स योर स्वीपर, whether it's your teacher, whether it's your friend, even us that we are connecting now, हम सब का कुछ ना कुछ एक कनेक्शन पिछले जन्म में था. समथिंग वी हैव डेफिनेटली इंटरचेंज, एक्सचेंज, वही इसीलिए आज हम लोग फिर से यहाँ पे कनेक्टेड हैं. जो हमारी लाइफ में वो जो 100, 500, 1000 लोग हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हम लोग सबका कुछ ना कुछ बाकी होता है बैलेंस, कुछ हमारा इंटरैक्शंस बाकी होते हैं, कुछ हिसाब किताब बाकी होता है, कुछ साइकिल्स बाकी होती हैं जिससे लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ हमारा पहला अकाउंट होता है, वही हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हमारे गीता में, हमारे स्क्रिप्चर्स में हम लोग को ये सब बताया हुआ है और वही आज हम लोग यहाँ पे फिर से पढ़ रहे हैं. सो नाउ प्लीज कंटिन्यू संगीता जी, सो दैट वी कैन एक्सप्लोर इट अ लिटिल मोर. Do you think it's a fluke by nature? It's not. You cannot imagine yourself not existing because it's impossible for you not to exist. If you could imagine it, you could create it, and you can never create it. You have always existed, and you will always exist because you are a part of creation. Yeah. तो अब आप ये सोचिए, वो वाला जो श्लोक है, आप लोग जो गीता पढ़ रहे हैं आपको पता होगा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि न नैनम समथिंग ऐसे करते हैं ना आत्मा को कोई भेज सकता है, ना इसको पानी गीला कर सकती है, ना इसको हवा सुखा सकती है, ना आग जला सकती है. ये वाला अगर हम लोग पढ़ते हैं उसमें बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसको कोई कुछ कर नहीं, इट इज ऑलवेज बीन देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर, इसको कोई नहीं मार सकता है. ये हमारे थॉट में भी नहीं आता है, ये हम लोग इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस नॉट टू एग्जिस्ट. जब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं तो हम उसको क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं, right? So this is what we are talking about in this chapter, our soul, our life, like what we are here for and what we have to do in our life. Yeah, please read. There has never been a time when you and I and the kings gathered here have not existed, nor will there be a time when we will cease to exist. As the same person inhabits the body through childhood, youth, and old age, so too at the time of death, he attains another body. The wise are not deluded by these changes. Bhagavad Gita, 5th century BC, ancient Hindu text. Yeah, so in this whole chapter, okay, in the whole book there were little snippets which were kind of taken from Gita, जो हम लोग को पढ़ के लग रहे होंगे, whether it was about the feelings, whether it was about the ripple effect, or whether it was if you are doing wrong it will come back to you, if you are doing good it will come back to you. All of these were kind of there from the Gita. ठीक है, बट अभी वाला ये जो पैराग्राफ है, ये तो आप देखिए पूरा ही उन्होंने गीता से इस पूरे चैप्टर का जो अगर हम लोग एसेंस भी बोलें, इट इज ओनली अबाउट आवर सोल. ओके, सो हियर अगेन इफ वी सी, इफ आई रीड इट इन हिंदी, ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व नहीं था, न ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा. जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है. बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते. भगवद गीता. इट्स लाइक वी आर हियर, लाइक ऑल ऑफ अस आर हियर, and the kings gathered here have not existed. ठीक है, ये जो लोग हैं ये एक्चुअल में नहीं है. ठीक है, अभी है, अगले जन्म में क्या होंगे नहीं पता, कहाँ जाएंगे नहीं पता, बट ये लोग, इनकी जो सोल है, इट विल ऑलवेज ऑलवेज एग्जिस्ट. द बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट बट द सोल कैरीज ऑन. ठीक है, तो जैसे आश्मी मैम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दी थी, आई डोंट नो अगर हमने वो वाला बोला है कि नहीं. इट्स लाइक
आवर बॉडी इज लाइक अ कार, या, एंड आवर सोल इज द ड्राइवर, ठीक है। तो अगर हम सोचें कि हम ड्राइवर हैं, हाँ, और हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर मेरा कोई, हमने सिग्नल जंप किया है या कोई एक्सीडेंट किया है, तो जब चालान होता है आपका, ठीक है, आप गाड़ी चेंज भी कर लो, तो क्या ऐसा होता है उस गाड़ी के संग आपका चालान खत्म हो गया? टेल मी, कि जो एक्चुअल का ड्राइवर होता है उसके पास चलाना रहता है। आप अब पहले में भी आप ऑल्टो चलाते होगे, अब आप में भी करोला चलाते हैं, आगे चल के आप BMW चलाएंगे, लेकिन आपका जिस गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है, जो चलाना है, वो तो आपको लेके BMW में भी रहेगा और आपके ऑल्टो में भी रहेगा, राइट। वैसे ही हमारी जो सोल है, हाँ, हम, मेरा जो बॉडी ने जो भी इस जन्म में कर्म किए हैं, जो अच्छी चीजें की हैं, वो गंदी चीजें की हैं, वो मेरी सोल लेके आगे जाएगी ही जाएगी। भले हम अगले जन्म में मे बी आई एम लाइक अ दीपिका पादुकोण और मे बी आई एम लाइक अ सचिन तेंदुलकर, आई डोंट नो मेरे को कैसी बॉडी आगे मिलेगी, वो सब डिपेंड करेगा कि हमने कितने यहाँ पे ग्रैटिट्यूड किए हैं, कितने यहाँ पे हमने कंप्लेंट्स किए हैं, कितने मेरे चालान कटे हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड और उससे मेरे को वो डिसाइड करेगा कि मेरे को कौन सी बॉडी मिलती है आगे, लेकिन जो मेरे कर्म किए हुए हैं, जो मेरे सोल के चालान है, वो मेरी डिसाइड करते हैं कि मेरे को लाइफ किस टाइप की मिलेगी, ठीक है। सो यही इसमें बोला था, वाइज आर नॉट डिल्यूटेड बाय दीज चेंजेस, माने जो भी इस लाइफ में हम लोग कर रहे हैं, जो एक्चुअल में जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको पता है कि ये सब, जैसे बोलते हैं ना, सब माया है, या दिस लाइफ इज लाइक अ माया। एंड yesterday a kid shared a very nice quote in the kid section that this world is a theater, we are all actors and everything is like a play, and this ऐसे करके बहुत अच्छा शेक्सपियर का कोट उसमें, तो लाइक वाओ, किड्स को भी इतना पता है, लाइक यू नो, एंड दिस इज सो एप्ट कि जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट लोग हैं, या जो आप भी बोलो, जो एक्चुअल में जो लोग समझ चुके हैं लाइफ की ये सारी चीजें, कि वो लोग इस चीजों में उलझते नहीं हैं। हम लोग को बहुत टाइम है उस वहां तक पहुंचने के लिए, बिकॉज अभी भी हम लोग उसी में अटके हुए हैं कि मेरी ड्रीम्स पूरी हो जाए, मेरी, हम हॉलिडे पे चले जाएं, हम लोग अभी भी उसमें अटके हुए हैं। बट एक्चुअल में जब हम लोग इससे ऊपर हो जाएंगे, तभी हम लोग वाइज कहे जाएंगे। अभी हम लोग थोड़े थोड़े से अनवाइज हैं, तो चलता है, पहले तो ड्रीम्स पूरी करनी ही है हमको, राइट। So let's read what happens next. So, what happens when a person dies? The body doesn't go into non-existence because there's no such thing. It integrates itself into the elements, and the being that is inside you, the real you, doesn't go into non-existence either. The very word being tells you that you will always be. You are not a human being. You are an eternal being living temporarily in a human body. If you stopped existing, there would be an empty space in the universe, and the whole universe would collapse into that empty space. Yeah, so here again आप देखिए, फिर वो यही कह रही है that our body, okay, does not go into non-existence. ऐसा नहीं है कि आज है वो कल नहीं है, हम लोग डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे 5 एलिमेंट्स में, ठीक है। When it is saying it integrates itself into the elements, क्या होता है, हमारी बॉडी, चाहे हम लोग उसको अग्नि दें, या हम उसको दफनाएं, बरी करें, या जो भी हमारे हर कस्टम के जो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, जिस तरीके से आफ्टर द सोल डिपार्ट्स हम लोग जो भी करें, ये सारे एलिमेंट्स अपना अपना पार्ट वापस ले लेते हैं, ठीक है। और यही हमको यहाँ पे पता है, बट द एक्चुअल बीइंग दैट इज इनसाइड यू, व्हाट इज दैट बीइंग? द सोल दैट इज इनसाइड अस, या इनसाइड दिस बॉडी, डज नॉट गो इनटू नॉन एग्जिस्टेंस। वो हमेशा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये एक, अगर हम लोग उसको ऐसे ही सोचें कि एनर्जी है, हम सबके अंदर जो एनर्जी है, वो सारी एनर्जी का एक बैलेंस बना हुआ है। अगर आज यहाँ से वो एनर्जी निकली तो कोई और बॉडी में जाएगी, तभी वो बैलेंस रहेगा। अगर ये वो हो जाती, क्या बोलते हैं उसको, वो हो जाती, डिसिपेट हो जाती, या गायब हो जाएगी ये एनर्जी, तब क्या होगा, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा एंड द होल यूनिवर्स वुड कोलैप्स। एक एम्प्टी स्पेस रह जाएगी। वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज इन बैलेंस इन दिस होल यूनिवर्स। एंड सेकेंड चीज आप देखिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी वर्ड बीइंग, ओके। इसके पहले आपने कभी सोचा था ह्यूमन बीइंग का, ये बीइंग का मतलब क्या होता है? Have you ever thought? I had not thought before this book. Human being आप देखिए is like the present continuous. हाँ, इसका हिंदी में भी बहुत, is like this chapter is amazing in Hindi by the way. आपका वास्तविक स्वरूप है being, जो आत्मा है,
बीइंग शब्द आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे. बीइंग माने इज लाइक यू विल ऑलवेज बी. बीइंग का क्या है? इट्स लाइक यू आर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. या कभी नहीं बोलता ह्यूमन बीइंग. अपन कोई मर भी जाता है तो भी कोई नहीं बोलता है कि ह्यूमन बीइंग, वो फिर भी ह्यूमन बीइंग ही रहता है. या तो ये जो बीइंग है, बीइंग हो गया पास्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता. यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग. हमेशा हम लोग रहेंगे. आवर सोल विल ऑलवेज बी देयर. ओके, इट इज एन इटर्नल बीइंग लिविंग इन अ ह्यूमन बॉडी, टेम्पररीली लिविंग इन दिस ह्यूमन बॉडी. आप तो एक अमर आत्मा है जो अस्थायी तौर पर एक मानव देह में जी रही है. ठीक है, यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा और पूरी सृष्टि उसी खाली स्थान में गिर जाएगी. So everyone is clear that whatever we are doing here, okay, is just something to achieve something. It is whatever we are doing is to have something. हाँ, तो अब इस बुक में हम लोगों ने पढ़ा है बी, डू और हैव. तो बीइंग जो है, जो हमारी आत्मा है, हमको सिर्फ उस पे काम करना चाहिए. उस पे कैसे अपन काम करेंगे? या ग्रैटिट्यूड से, लव से, हैप्पीनेस से, जॉय से. सिर्फ उससे हम हमारे आत्मा पे एक्चुअली काम करते हैं. ओके, या प्लीज रीड. The only reason you can't see another being after they have left their body is that you can't see the frequency of love. You can't see the frequency of ultraviolet light either, and the frequency of love, which is the frequency they are on, is the highest frequency in creation. The greatest scientific equipment in the world cannot even come close to detecting the frequency of love. Yeah, just But one second, remember- Sunita ji. Just one second. We'll start from here only. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us that the only reason, ठीक है, that we cannot see another being after they have left their body. ठीक है, जब एक आत्मा एक शरीर को छोड़ के चली जाती है तो हम लोग उसको क्यों नहीं देख पाते? जब एक आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है तो if you look at this picture, वो यहाँ पे आ जाती है. It merges with the soul, मेन सुप्रीम पावर. या अगर हम उसको ये नहीं बोलें कि इट मर्जेस विद द सुप्रीम पावर, या इट इज इन दैट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ओके, वो लव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर है. इट इज लाइक इन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. प्योर सोल, वो पवित्र आत्मा है, तो इट इज लाइक इन द प्योर लव का जोन में. ठीक है, नाउ इफ वी लुक एट व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस अगेन, सॉरी काउंट, उस समय जब वो आत्मा शरीर छोड़ देती है, उस समय वो आत्मा होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लव के जोन में. ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लव की होती है. हम लोग ने ये पढ़ा है कि हम लोग उसी फ्रीक्वेंसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, देख पाते हैं, छू पाते हैं जब हम उस फ्रीक्वेंसी के सेम लेवल में होते हैं. जनरली व्हेन पीपल लीव अस और व्हेन द सोल डिपार्ट्स, ऑन विच फ्रीक्वेंसी आर वी? हम लोग हमेशा सैड, लो, इस टाइप की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं. तो उस समय वो हमको कैसे दिखेगी? हमको कभी नहीं दिखेगी, राइट? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी अलग है. हम लोग हमेशा सैड, दुखी और इस तरीके की बातें सोच के नहीं, फील करके उस डिफरेंट जोन में रहते हैं, बिलो द लाइन की फीलिंग्स में रहते हैं. एंड जो आत्मा जाती है वो बेस्ट फ्रीक्वेंसी की होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लव में होती है, विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन क्रिएशन. दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग. सो उस फ्रीक्वेंसी में है जिसमें ग्रेटेस्ट साइंटिफिक इक्विपमेंट उसको चेक ही नहीं कर सकता, उसको देख ही नहीं सकता. ठीक है, आप कोई भी चीज बोलो, उसका जो कलर है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, वो डिटेक्ट ही नहीं हो सकता. इसलिए हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, हम लोग उसको फील भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग उस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं. सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू. But remember that you can feel love. So if there is someone you can't see anymore, you can feel them on the frequency of love. You can't feel them in grief or despair, because those frequencies are nowhere near the frequency they are on. But when you are on the highest frequencies of love and gratitude, you can feel them. They are never far away from you, and you are never separated from them. You are always connected to everything in life through the force of love. Yeah, so if we are missing someone, or if we are thinking that they have left us and gone away, and we are always sad and दुखी रहते हैं, of course ये बहुत natural है.
ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, बट इस सबको फॉलो करना, अपने को प्रैक्टिस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बट अगर हम लोग ये सब करने लगे, ठीक है, दैट इज द टाइम व्हेन वी विल एक्चुअली फील दैट यस द पर्सन हु हैज लेफ्ट अस इज विद अस, दैट इज द टाइम व्हेन वी कैन एक्चुअली फील देम, बिकॉज वो लोग इस बॉडी को छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, वो लोग एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लव के फ्रीक्वेंसी में है, वो लोग एक दूसरी बॉडी में जाने वाले हैं, या तो हम लोग, वो लोग तो हैप्पी हैं, राइट, वो लोग उस फ्रीक्वेंसी में हैं, वो लोग तो अब कुछ नहीं, उनको इस बॉडी से, इस लाइफ से, इस माया से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। होता है कुछ कनेक्शन, उसके लिए ना, हैज एनीवन डन विपासना ओवर हियर? No? I know about it, not done. No. Yeah, it is said No. that, I've also heard about it. I have done Vipassana Wow. thrice. My sister, she has done, yes. She has been over there thrice. Yes, cool, very good. तो उसमें आपको ऐसा बोला गया है क्या? आपको पता होगा, like what I have heard, I'll tell you that, when you are about to leave your body, when the soul is about to leave your body, your life flashes by in front of you. हाँ, तो उस समय जो चीज आपको, जहां पे आप अटक गए, if you get sad or attached to something, that is what you will get in your next life. आपको next life में उसी से बंधन होएगा, या जो भी बोलते हैं ना, उससे करेगा कनेक्ट। इफ यू डोंट, ये तो हमने मूवीज में सुना है कि पूरी लाइफ आंखों के सामने निकल जाती है, व्हेन यू आर अबाउट टू डाई, सब कुछ दिख जाता है, जो भी हमने अच्छे काम किए होते हैं, गंदे काम किए होते हैं। हाँ, तो उस समय अगर वो पर्सन अच्छी चीजों के बारे में सोच के जाता है, तो वो गुड फ्रीक्वेंसी में ही रहता है, एंड दैट पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड, दैट सोल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बॉडी। बट जो हम लोग यहाँ रह जाते हैं, हम लोग उस फ्रीक्वेंसी में नहीं है, इसीलिए हम लोग उस पर्सन को, उस आत्मा को, उस प्योर सोल को नहीं फील कर पाते हैं। एंड जब हम लोग उस फ्रीक्वेंसी में होंगे, उस जो जा चुका है उसके बारे में अच्छी बातें, उस और अच्छे टाइम के बारे में सोच रहे होंगे, उन चीजों के बारे में ग्रेटफुल हो रहे होंगे, दैट इज द टाइम व्हेन वी एक्चुअली फील कनेक्टेड टू दैट पर्सन who has left us. So this is what Rhonda Byrne is telling us in this paragraph. आप इसको और पढ़िए so that you can understand it a little more. Okay? Yeah. Yeah. Heaven is within you. All the principles of heaven and earth are living inside you. I can't read the name. Yeah, I also read it in Hindi. हाँ, कि है क्या ये? Morie Yushiba. Okay. Hindi is better, no? Like the font is such that it's like, yeah. Yes, very different. I am unable to read. Yeah. Founder of the martial art Aikido. Yeah. So now, अब आप देखिए martial arts. How many of us have seen all these kind of movies, Kung Fu and the Return of the Dragon and all that? आपने देखे ये सब? और हम लोगों ने नहीं भी देखे, बट ये हमको, आपको ये तो पता है ना कि थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का ये मार्शल आर्ट होता है। Yeah, you have to have a lot of control on your body, your breath, yeah, and everything. It's like you have to be like a total kind of a meditation in action. ऐसा नहीं लगता है? Like जब भी हम देखते हैं तो हमको यही लगता है कि अभी क्या एक ऐसे मारेगा और वो आदमी उड़ के कहीं चला जाता है। या so means this person or the people who train in this have so much control on their body and their mind. Yeah, and they are like very passive. They don't show their emotions so easily on the face. एटलीस्ट जब भी मूवीज में देखते हैं तो ऐसे ही देखते हैं, कुछ कंपटीशन में भी देखा है तो ऐसे ही लगा है। या सो नाउ ही इज टेलिंग अस एंड दिस इज द फाउंडर ऑफ दैट मार्शल आर्ट्स। या ही इज टेलिंग अस ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ हेवन एंड अर्थ आर लिविंग इनसाइड यू। हाँ, तो ऑल द प्रिंसिपल्स माने आपको जो चाहिए, अच्छा गंदा, हेवन का भी और अर्थ का भी, सब हमारे अंदर जिंदा है, हमारे अंदर ही सक्रिय रूप से विद्यमान है। इफ आई रीड इट इन हिंदी, तो अब ये हेवन क्या है as per you? Tell me. We are so many of us here, 44 of us. क्या आपको लगता है what is heaven? Someone? संगीता जी आप ही बताइए, ऐसे तो सभी म्यूट हैं। गोपा दी आप बताइए। स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग तो है, इसका as per you, full of love. जो हम अब पढ़ रहे हैं तो probably place which is full of love. हाँ, which is where Very there's no peaceful. pain. No pain and full of love. Yeah. If you are content. Peaceful, na? Peaceful and pleasant place. Beautiful, absolutely beauty. Absolutely. Content. Okay. You are satisfied. Okay. तो फिर कश्मीर को स्वर्ग क्यों बोलते हैं बताइए? हाँ,
Because it's beautiful. हाँ, इट इज ब्यूटीफुल। तो अब अगर ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे, अच्छा आप बोल रहे हो ब्यूटीफुल है, कोई बोल रहा है कंटेंटमेंट है, वहां पे सेटिस्फैक्शन है, कोई बोल रहा है लव है, नो पेन है, तो इतने अलग अलग स्वर्ग हैं क्या? फिर बताइए कि एक ही है? तो उनको बोलना चाहिए हेवेंस आर विद इन यू, फिर तो उनको ये बोलना चाहिए कि अनेकों स्वर्ग आपके अंदर हैं। इट शुड बी लाइक दैट। हेवन वो जगह है हाँ, जो हमको हमारे जो अच्छे चाहिए वो कर्मों का हमारा फल है। सब सॉरी, हमारे I? अच्छे कर्मों का जो फल मिलता है, हाँ, जिस जगह से मिलता है, वो स्वर्ग है। ओके, मतलब कोई अलग जगह है, यहाँ नहीं है, राइट? माने यहाँ ये नहीं है, धरती तो नहीं है स्वर्ग, है ना? मतलब धरती सबका नहीं है। ये एक तो यूनानिमस डिसीजन ले लें। समवन एल्स वाज आल्सो सेइंग समथिंग। हाँ, हमको जो अच्छा लग रहा है, हमको जो सेटिस्फाई कर रहा है, वो हाँ। हमारे लिए स्वर्ग है। हाँ, तो मतलब राइट, दीपा जी द क्लोजेस्ट, मतलब आपके हिसाब से अर्थ पे है कि वो भी कहीं और है? नहीं, अपने अंदर अपने को जो और खुशी फिर भी खुशी हो दे रहा है सकता ना, वो स्वर्ग है। वो चीज वैसे। क्यों किसी को तो घर भी स्वर्ग लगता है, अपना घर हाँ, बेस्ट है, सब heaven अच्छा है, तो beautiful घर भी है। स्वर्ग है। एग्जैक्टली, अब रमा जी बोल रहे हैं, यस। अपना घर ही जहाँ शांति है और संतोष है, हाँ, तो एक्चुअल में अपने भीतर शांति और संतोष है तो भी स्वर्ग है, अपने भीतर ही स्वर्ग है अगर अपन मतलब माने खुद के तो। अंदर ही है फिर। हाँ, अपने अंदर ही है और इसी लाइफ में है, ठीक है? अगर हमारी सब ड्रीम्स पूरी हो जाएं तो वो स्वर्ग नहीं है? टेल मी। है Yeah, बिल्कुल है। that is what he is telling us, that it is here only. All the principles of heaven and earth, माने हम लोग कुछ सोच रहे हैं, आप heaven बोलो, hell बोलो, earth बोलो, सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हम below the line की feelings में रहते हैं, तो जो हमारा nightmare है, is that not hell? बोलिए, वो तो hell हुआ ना? जो nightmare अगर हमारा सच हो जाएगा, तो क्या जीवन, हम लोग, आपने सुना है नरक हो गया ये जीवन? कितने जन मूवी में देखते हैं या प्रोग्राम में देखा होगा, आपने सुना है ना, नरक हो गया ये तो एकदम, यहाँ पे तो रहना ही क्या है, दुश्वार है और समथिंग समथिंग, ऐसे बहुत सारे डायलॉग अपन सुनते हैं ना। तो यही है, जब हम लोग हमारे, दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस, नॉट मी, दैट ही इज टेलिंग अस दैट व्हेन वी आर लिविंग below the line, when we are in those emotions, our nightmare comes true and we make our life hell. Okay, so उसका उल्टा भी वही है, when we are living above the line maximum of the times, and we are continuously living that, we are continuously feeling good, happy, positive, with gratitude, then our dreams come true, then that is heaven for us. तो hell, heaven सब कुछ यहीं पे है, ठीक है? अर्थ भी वो बोल रहे हैं, आप सारी चीजें, और वो कहाँ से आ रही हैं? हमारे अंदर से आ रही है। जो फीलिंग्स आ रही हैं, ये सब तो हमारे अंदर से ही आ रही हैं, राइट? सो वी आर क्रिएटिंग आवर हेल, वी आर क्रिएटिंग आवर हेवन. So we choose by selecting our feelings of what kind of a life we want. Okay, so hell, heaven सब कुछ हमारे अंदर है और हम ही हमारे आसपास उसको बनाते हैं. Yeah. Ancient texts say that heaven is within you, and what they are talking about is the frequency of your being. When you leave your human body, you are automatically on the highest frequency of pure love, because that's the frequency of your being. In ancient times, this highest frequency of pure love was called heaven. Yeah. So again, if you're seeing here, Rhonda Byrne is telling us the same thing. वो क्या कह रही है? Ancient text ये कह रहे थे, ठीक है? That when we are talking about the frequency of our being, okay, like the frequency of our आत्मा, वो बहुत प्योर है. It is like pure love. Like pure love मतलब क्या हुआ? Pure is like एकदम पवित्र आत्मा, पवित्र प्यार, या वो उस फ्रीक्वेंसी पे रहती है. और जब उस फ्रीक्वेंसी पे अपन जाएंगे, that is heaven. ठीक है? So let's read. But heaven is for you to find here in this lifetime, not when your body dies. You are to find heaven here while you are on earth. And indeed, heaven is within you, because heaven is the frequency of your being. To find heaven on earth is to live your life at the same frequency as your being, pure love and joy. या तो आप देखिए, हमारा हेवन, हमारा हेल वो यही है, ठीक है? नॉट व्हेन योर बॉडी डाइज, ठीक है? बॉडी तो जाएगी, ठीक है? इट विल, यू नो, क्या हम लोग, ये भी हम लोग तो ये हमारे पिक्चर में ना इतने सारे डायलॉग है ना, लेकिन अभी हमको थोड़े थोड़े याद नहीं आ रहा है कि हमारी सारी मिट्टी में हम लोग मिल जाएंगे एंड ऑल दैट ना.
सब एलिमेंट्स ले लेंगे जो हम लोगों ने पहले में पढ़ा, इसका बहुत अच्छे डायलॉग्स आते हैं. एनीवन रिमेम्बर्स क्या? अभी ऑफलेट मैंने बहुत सारी, आत्मा यही छूट जाएगी टाइप्स कुछ होता था. आत्मा तो नहीं छूटेगी, आत्मा तो चली जाएगी, बाकी सब चली कुछ जाएगी. यहाँ मिल जाएगा. एलिमेंट्स अपना अपना ले लेंगे ना. देयर आर डायलॉग्स लाइक दिस ना. तो वो एक्चुअल में यही है, बॉडी हमारी यही रह जाएगी, हमारी आत्मा चली जाएगी. कहाँ चली जाएगी? नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट बॉडी में चली जाएगी. राइट, वी गॉट ना कि पुनर्जन्म होगा हमारा, अगले जन्म में हम लोग ये करेंगे. ठीक है, तो हमारी आत्मा वो सब जाके न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस करेगी, बट हमारी बॉडी यहीं रह जाएगी. तो क्या हमको जो हेवन और जो हम लोग अभी बोलते हैं कि अगले जन्म में ही होगा, अगले जन्म में ही हम लोग ये सब करेंगे, तो हम लोग वो क्यों सोचें? क्यों ना हम लोग अपना स्वर्ग यहीं बना लें. कैसे बनाना है हमको? टू फाइंड योर हेवन हियर while on this earth. या जब इस आत्मा में हम यहाँ पे हैं, अभी इस शरीर में हैं, तभी हम लोग अपना क्यों नहीं स्वर्ग ढूंढ लेते हैं. और कैसे ढूंढना है? इट इज विद इन अस. कैसे? हमारे अंदर. जब हम हर सिचुएशन में चूज करने जा रहे हैं, हमारे को चूज क्या करना है? जॉय एंड लव, प्योर लव एंड जॉय. जब हर सिचुएशन में, हर मोमेंट में जब हम चूज करेंगे, तब हमारा अर्थ पे ही हेवन बनने लगेगा. या बिकॉज ये चॉइस हम लोग हमारे अंदर से करते हैं, पॉजिटिविटी की जोन में रह के करते हैं. सो व्हेन वी आर चूजिंग लव, व्हेन वी आर चूजिंग जॉय इन एवरी सिचुएशन, दैट इज द टाइम वी आर क्रिएटिंग आवर हेवन. How are we creating it? When we are in the love का frequency, when we are in this joy, excitement, positive feelings के frequency में रहेंगे, तब क्या होगा? सबको पता है ना? हमारी ड्रीम्स पूरी होंगी, हम लोग उस अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे. जो पूरा चैप्टर 242 पेजेस में जो हम लोगों ने पढ़ा है, द होल बुक इज टेलिंग अस दैट. तो तभी हमारा स्वर्ग बनेगा. लेकिन हमको सबसे पहले अपने अंदर से वो फीलिंग्स को चूज करना है. यस, सो सी वी आर लाइक, अगर हम इसको देखें, दिस प्योर लव, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लव है, ये हमारे ही अंदर है. हम जितना ज्यादा सिर्फ जॉय एंड लव को चूज करेंगे, हमारा हेवन यहीं पे ही रहेगा. प्रिया जी, वैसा वो भी एक भजन है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे. राइट, वेरी नाइस, वेरी स्वीट. हाँ, ये आप यू सिंग वेरी नाइस. आपने वो जो भेजा था ना सॉन्ग्स का, वो दैट वाज वेरी नाइस. अच्छा, थैंक यू. थैंक यू. या प्लीज रीड, संगीता जी. For the love of life, the question is not really whether or not you go on, but rather how are you going to enjoy it. Robert Thurman. Yeah. The 1941 Buddhist writer and academic. Yeah. So now again, if you look at it, he's telling us it doesn't matter. हाँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम आगे जा रहे, whether or not you go on. माने you मतलब your soul, your being, वो आगे जाती है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या important है? Important है how are you going to enjoy it. What? How are you going to enjoy this life? How are you going to enjoy it? Again, आनंद. Enjoy is what? आनंद, fun. ये तो enjoy तो मतलब आप यही कर रहे हो ना, you are happy about it, you are in good feelings about it. तो actual में ये important है. ठीक है, कि अगर हमको इस लाइफ में कुछ भी चाहिए, we have to be happy, we have to be, you know, joyous, we have to be in excitement. Yeah. You are an eternal being. You have all the time in the world to experience everything. There's no lack of time because you have forever. You have so many adventures ahead, so many things to experience. Not just adventures on Earth, because once we've mastered Earth, we will begin new adventures in other worlds. There are galaxies, dimensions, and life that we can't even imagine now, but we will experience all of them. And we will experience them together because we are a part of creation. Billions of years from now, when we look out into creation for our next adventure, there will be worlds among worlds, galaxies among galaxies, and unlimited dimensions stretching out before us for all eternity. Yeah. So now when Rhonda Byrne is telling us you are an eternal being, again, it is the soul. Okay. That soul is an eternal being.
हमारे पास बहुत टाइम है टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। आप बोलोगे कैसे, अभी तो कितना कुछ देखना बाकी है, आधा वर्ल्ड क्या आधी इंडिया भी नहीं देखी हमने, इतना कुछ एक्सपीरियंस करना है। बट नाउ अगर आप ऐसा सोचो कि सोल तो चलती रहेगी, राइट? ये जो हमारी एक जर्नी है, ये इस लाइफ, इस ये वाली जो बॉडी की जो लाइफ थी, इसमें हमने इतना ही एक्सपीरियंस किया। अब जो बाकी चीजें बाकी हैं, जो बाकी कंट्रीज घूमनी बाकी हैं, जो बाकी स्किल्स आपको करना है, जो बाकी एडवेंचर्स आपको करने हैं, ये सब ये सोल डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेगी और आगे आगे लाइफ में करती ही जाएगी। दिस इज व्हाट रॉन्डाबन इज टेलिंग अस। और इफ यू लुक एट, अगर आप जो लोग गीता पढ़ रहे होगे, आई थिंक उसमें भी नाउ आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर अगेन, now I also want to join Gita, ठीक है? There's so many things to read and study and learn, it's like immense, हाँ? तो वो when I'm reading this today I'm thinking yes, there is no lack of time because you have forever. ये सोल में हमको मे बी पावर बुक, इसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे, बट स्टिल देयर इज सो मच टू लर्न, सो मच टू एक्सपीरियंस, सो मच टू शॉप, सो मच टू ईट, सो मच टू एंजॉय एंड एक्सप्लोर। वो सब हम लोग यहाँ पे करना है हम लोग को, और वो ये सोल करेगी ही। बिकॉज जब हम लोग, बिकॉज इट इज एन इटर्नल बीइंग, ये सोल कभी जाएगी नहीं। हम लोग तब तक यहाँ पे रहते ही रहेंगे जब तक अपन सब कुछ डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। एंड नाउ रॉन्डाबन इज टेलिंग नॉट जस्ट एडवेंचर्स ऑन अर्थ, because once we have mastered earth we will begin new adventures in the other worlds. Which are the other worlds? आप सोचो गैलेक्सी में और कोई प्लैनेट होंगे और कोई यूनिवर्स होंगे, उन सब में जाके हम लोग को करना है। एंड बिलियंस ऑफ एंड वी विल एक्सपीरियंस देम टुगेदर। टुगेदर मतलब जो आपके अभी आसपास के लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, वो भी तो सोल्स हैं, उनकी लाइफ भी आगे जाएगी। सो वी विल ऑल एक्सपीरियंस देम टुगेदर। ये नहीं कि हम अकेले अकेले सब जगह घुमाएंगे, नहीं, हर जन वो जर्नी करेगा, ठीक है। और जैसे हम लोग इस लाइफ में जो चीजें चूज करेंगे, क्या, जैसे अगर हम बिलो द लाइन की फीलिंग्स चूज करते हैं, तो क्या पता मेरा जन्म अगले बार कहाँ पे हो, कौन सी कंट्री में हो, मे बी सोमालिया में हो, या मे बी अभी कहाँ पे हो रहा है, सीरिया में हो, इस्तांबुल में हो, आई डोंट नो। जैसे हम कर्म करेंगे, कोई जरूरी नहीं हमको लकी बना के इंडिया में ही भेज दिया जाएगा, नहीं। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो क्या पता हम स्विट्जरलैंड में हो, जहाँ पे सब कुछ एकदम क्लीन, प्रॉपर, नीट, नो पॉलिटिक्स, नथिंग, वैसे हो। अगर हमने गंदे कर्म किए होंगे तो हमको सोमालिया में भेज दिया जाएगा या पाकिस्तान में भेज दिया जाएगा, आई डोंट नो कहाँ भेज दिया जाएगा। इट विल ऑल डिपेंड ऑन माय कर्म इन दिस लाइफ, वेदर आई चूज लव और वेदर आई चूज फियर और एंगर और एनी इमोशन बिलो द लाइन, ठीक है। बट सब जन सब कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। जैसा अभी ग्रैटिट्यूड कलेक्ट करके हम लोग करेंगे, वैसा ही हमको नेक्स्ट लाइफ में आगे वो वाली बॉडी या कार मिलेगी। And so, do you think with all this that perhaps you are a wee bit more special than you ever considered yourself to be? Do you think perhaps you might be a little more valuable than you thought? You, every person you know, and every person who has ever lived have no end. तो हम लोग सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली हम ही अकेले स्पेशल हैं, सब जन यहाँ पे दोबारा आने वाले हैं, ठीक है। सब जन को सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, डिपेंडिंग, सब कुछ मतलब अगर आपने इस जन्म में अच्छे चालान कटाए, आई मीन नो चालान कटाए, तो आपकी नेक्स्ट कार बहुत अच्छी होगी और वो आप जूम करके सब जगह उसमें घूमोगे, कोई पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, अच्छे कर्म होंगे, ठीक है। आपको नहीं लगता ऐसा क्यों है, हमने ऐसा क्या किया कि हम यहाँ पैदा हुए हैं और वो अंबानी के यहाँ पे पैदा हुआ है, कभी सोचा है? हमने तो सोचा हुआ था छोटे से ही कि ऐसा क्यों है, मेरे को तो इतना कुछ काम करना पड़ता है, उसको तो कुछ नहीं करना पड़ता है, उसकी मम्मी तो उसको संतरा के अंदर का भी छील के देती है। आई हैव थॉट दिस व्हेन आई वाज स्मॉल, यू नो, सीइंग अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स। हम थिंकिंग मम्मा, हम उसके घर, इट्स अ फैक्ट, हम उसके घर गए थे, उसकी मम्मी उसको संतरे का अंदर का छील के दे रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज स्मॉल एंड हियर वाज आई, मेरे को खुद ही संतरा भी छीलना पड़ता था और बहुत कुछ करना पड़ता था। आई लर्नड अ लॉट, बट आई वाज सेइंग यू मस्ट हैव फेल्ट ना कि व्हाई इज इट दैट आई हैव टू डू सो मच, राइट? यदि मेरी फ्रेंड की मम्मा तो उसको तरबूज से बीज तक निकाल के देती थी, एंड आई यूज्ड टू कम होम एंड टेल माय मॉम कि मम्मा देखो मेरी फ्रेंड की मम्मा ऐसे करती है। तो आपकी मम्मा ने क्या बोला? बोला बेटा बड़े होकर के अपने आप ही सब खाना सीख जाओगे, ऐसे फिर मैं दूंगी तो ये मेरे पे डिपेंड रह जाओगे। तो मेरे को उनका आंसर भी बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है चलो अपने आप सीख जाएंगे। एंड आपको पता है ये मैंने बचपन में मम्मा को कहा था, रॉन्ग निकाल के देना। लाइफ में जैसे इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए।
वरना बच्चे तो सोचेंगे लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस यार, अच्छा यहाँ पे तो कुछ है एंड लेट मी शेयर विद यू, ये तो It's an और अच्छी indirect- बात हुई। आई जस्ट बात करेंगे ना, दी मेरे को याद आ गया अभी। आई हैड टोल्ड दिस टू माय मॉम व्हेन आई वाज स्मॉल, और आपको पता है अभी रीसेंट क्या हुआ? आई थिंक विद इन 2 years आई वेंट टू अ क्लाइंट्स हाउस, मेरा व्रत था, उसने मुझे वैसे ही संतरा छील के दिया। आई वाज लाइक, आई केम होम, आई सेड मम्मा पता है आपको याद है हमने बचपन, आज मेरी क्लाइंट ने मेरे को वैसे संतरा छील के, आई वाज लाइक, एंड आई वाज सो, आई वाज लाइक आफ्टर टेलिंग हर, ओ गॉड प्लीज आप ऐसे मत करिए, ऐसे कोई नहीं कर, एंड आई वाज सो zapped ना। And see, and I was like amazed now when I'm sharing with you, तभी मेरे को याद आया, otherwise हम भूल गए थे ये बात। I'll remind my mom again, ठीक है? So I was like कि ऐसा भी होता है। तो अब यही, this is what, it's nothing that we are special या वो special है। जिसने जैसे काम किए हैं, जिसने जितना gratitude collect किया है, जितनी सेल्फलेस काम किया है किसी और के लिए, उतने लोगों को 20 छिलके मिलते हैं, आई मीन 20 हटा के मिलते हैं या संतरे छील के मिलते हैं। या लाइक क्यों होता है? समवन इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ और हर माउथ, वो यही होता है कि आपने जो ग्रेटिट्यूड कलेक्ट किए हैं अभी, तभी वही आपको आगे चल के मिलते हैं। या But Priya, I tell you that your mom never gave you संतरा छील के ना, वो अच्छी बात है, because I know somebody very close to me, I don't want to name that person, उसको बचपन से यही मिला, बीवी ने भी सेम करके दिया संतरा छील के and all that, तो अब बीवी देती नहीं है, तो that person has not eaten संतरा since 10 years now because he doesn't know how to eat it or maybe doesn't like to eat it on his own and all. So you are blessed that ऐसा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। नहीं, I am तो always in favor that everyone should know everything. Okay, I am always, जो लोग बोलते हैं ना कि लड़कों को ये मत सिखाओ, वो मत, I said क्यों, कभी हॉस्टल जाएगा, ठीक है, लड़की को भी आना चाहिए और लड़के को भी आना चाहिए। जो बोलते हैं ना नहीं लड़की को क्यों सिखाएं, उसको क्यों काम करना पड़ेगा, अरे आना सब कुछ चाहिए। That's my belief. Okay, I don't know what you tell your kids. That's what I feel. बिल्कुल आना चाहिए। आपको कुछ नहीं भी बनाना हो तो भी आपको आना चाहिए कि सामने वाला आपको बुद्धू नहीं बना पाए। लाइक आई टेल यू, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, बट आई कैन मेक आउट माय ड्राइवर इज डूइंग समथिंग, यू नो, गियर में कुछ कुछ आवाज आती है। मेरा भाई जब चलाता है तो ऐसी आवाज नहीं आती, सो आई टेल हिम बिकॉज आई डोंट नो व्हाट goof up he is doing with my car. Okay, then my brother will tell me इसका गियर टाइट हो गया। I said I tell him कि कुछ आवाज आ रही है इसके अंदर से। See, so it is always good to learn and know. Yeah, it is always good to know things. That's what I feel. Okay, so I think we shouldn't have laughed so much. It's like a very serious chapter. Sorry. Yes, please, Sangeeta ji, let's read. Don't you just want to wrap your arms around life and say thank you? Aren't you excited for the adventures ahead? Don't you want to stand on a mountaintop and cry out with joy, yes, to a never-ending life? Yeah, so if we start thinking like this, that yes, कोई बात नहीं, हम स्विट्जरलैंड में नहीं सेटल्ड हैं, हम मे बी अमेरिका में नहीं रहते हैं, या हम कश्मीर में नहीं रहते हैं, या यहाँ पे नहीं पैदा हुए हैं, या इतने पैसे नहीं है मेरे पास, doesn't matter, because ये लाइफ तो नेवर एंडिंग है, राइट? हमारी सोल हमेशा सब कुछ एक्सपीरियंस करेगी जो हम चाहते हैं, प्रोवाइडेड हम लोग अपना उतना ग्रैटिट्यूड कलेक्ट करते रहें। ठीक है, हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स कलेक्ट करते रहें, अपना ग्रैटिट्यूड करते रहें। व्हेन वी आर डूइंग दैट, आवर लाइफ विल बी अमेजिंग। और जो भी है, चाहे आपने बंजी जंपिंग अभी नहीं की, आपको अभी डर लगता है, या आपने वो गिटार नहीं सीखा, या आपने वो इटालियन के संग डांस नहीं किया, आपने जो कुछ भी आपकी विशेष हैं वो सब पूरी होंगी, बिकॉज एवरीथिंग वी विल एक्सपीरियंस ऑन दिस अर्थ, if not in this body, maybe a better body. अगर हम लोग अभी हेल्थ के लिए अपने अच्छे से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में आपको जैसी बॉडी चाहिए वैसी ही मिलेगी आपको, राइट? सो वी हैव टू से yes to a never ending life. When we are saying yes, what are we saying yes to? Is it yes to positivity, or is it yes to negativity? What are we choosing? If we are choosing love and happiness and excitement, then this life will be amazing. This forever life on this planet will be super amazing. Yeah. Please continue. The purpose of your life. You have no cause for anything but gratitude and joy. Gautam Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. Yeah. So now when we look at what Gautam Buddha ji is telling us, that we have no cause for anything but gratitude and joy. मतलब हमको हर चीज में यही ढूंढना है, gratitude and joy, तब हमारी लाइफ अच्छी होगी। ठीक है, that अगर हम लोग इसका टॉपिक भी देखें, the purpose of your life,
So our purpose of life is to choose gratitude and choose joy in each and every situation. That is how our life will be amazing. That is the purpose of our life. हम लोग जितना ज्यादा, अगर हम यही सोचते ना कि बोलते ना कि अंत में तो परमात्मा में हमको लीन हो जाना है, ठीक है, if that is the purpose of life and we are choosing negativity, if we are making people angry, if we are cheating people, if we are stealing from them, if we are making them upset, and each time we are choosing negativity, that is not the purpose of our life. उससे हम लोग परमात्मा में नहीं जाके मिलने वाले हैं, हम लोग हमारी लाइफ और बैड से बैड करते जा रहे हैं, पक्का फिर हम लोग सोमालिया में ही जाके नेक्स्ट जन्म में बॉर्न होने वाले हैं, ठीक है। सो जो भी सोचिए, जैसे भी सोचिए, आप कितने जन्म सोचते हैं नहीं क्या होगा, सबको तो यही मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। जो हम लोग करेंगे वो हम लोग को इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है। कुछ हमने ऐसे कर्म किए ही होंगे जो हम लोग अभी तक उसको, सो मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव फेल्ट ना कि क्यों हमारे संग ऐसा हो रहा है। हाँ, आती है ना सिचुएशन, उसका तो सब कुछ ठीक हो गया। आई हैव थॉट अबाउट इट मेनी टाइम्स बिफोर दिस बुक स्पेशली, कि क्यों एक बार में नहीं हो जा रहा है, इतने दिन से हम ड्रीम्स लिख रहे हैं, क्यों नहीं मेरी फुलफिल हो रही है। क्योंकि मैंने अपने पास्ट में उतना ग्रेटिट्यूड नहीं किया हुआ है, उतने पास्ट में मैंने ब्लेसिंग्स नहीं कलेक्ट की हुई हैं, तो इसीलिए वो मेरी ड्रीम्स में टाइम लग रहा है मेरे को। वो वाले ग्रेटिट्यूड जब तक हम पूरे नहीं करेंगे, मेरी ड्रीम नहीं मिलेगी मेरे को, राइट। If you have thought like this, means we have to do more gratitude in that particular area. इस जन्म के ग्रेटिट्यूड से क्या पता मेरे पिछले जन्म के भी कोई ग्रेटिट्यूड बाकी हो, पिछले जन्म के कुछ और कर्म मेरे ऐसे होंगे जो नहीं अभी तक हम जिनका गड्ढा भर पा रहे हैं, तो दैट विल कंटिन्यू। सो वी हैव टू कीप ऑन चूजिंग ग्रेटिट्यूड। ये नहीं कि एक दिन हम गिव अप करके बोल दें कि नहीं अब नहीं हो रहा है, इससे कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो बीज अंदर से प्रॉपरली रूट नहीं ले लेगा, तब तक उसकी ट्री या सैपलिंग या उसकी शूट्स नहीं निकलेंगी, है ना। वो बीज तो हमने डाला हुआ है, बट कितना उसको नर्चर करना है, कितना ग्रेटिट्यूड से उसको न्यूट्रिशन देना है, वो डिसाइड करता है कि हमारे को कब उसका रिजल्ट मिलने वाला है। yes. The purpose of your life is joy. And so, what do you think is the greatest joy in life? Giving. If a person had told me 6 years ago that the greatest joy in life is giving, I would have said, that's fine for you to say. I'm struggling to survive and can barely make ends meet. And so I have nothing to give. Yes. So now when we are talking about giving, what is Rhonda Byrne telling us? That purpose of life is joy, and the greatest joy is giving. So what do we have to give? Love. Love. We have to give gratitude. We have to give blessings. We have to give money. We have to give service. जो आप सोचो वो आपको देना है, ठीक है। लाइक यू कैन गिव इन सो मेनी वेज। व्हाई जस्ट लव, व्हाई जस्ट ब्लेसिंग्स, व्हाई जस्ट ग्रेटिट्यूड। आपको जो, अगर आप किसी को सोसाइटी में जो अपन पैसे भी देते हैं, किसी को कुछ डोनेशन भी करते हैं, कुछ फूड भी देते हैं, तो एवरीथिंग इज गिविंग, ठीक है। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट जॉय। या एंड लेट्स सी हाउ एल्स वी कैन इम्प्रूव दैट। The greatest joy in life is giving, because unless you give, you will always be struggling to survive. Life will be full of one problem after another. And just when you think everything is going along fine, something else will happen to throw you back into struggle and difficulty. The greatest joy in life is giving. And there is only one thing you can give: your love. Your love, your joy, your positivity, your excitement, your gratitude, and your passion are the true and everlasting things in life. All the riches in the world cannot even come close to the most priceless gift in all of creation, the love inside you. तो अगर हम हमारी लाइफ में देखें, ठीक है, जैसे कोई भी गेम खेलते हैं अपन, चाहे आप लूडो खेलिए, स्नेक्स एंड लैडर खेलिए, मोनोपोली खेलिए, हर टाइम लाइफ की तरह उसमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कोई गेम ऐसा तो नहीं होता ना कि आप खेलना शुरू किए तो आप जीतते ही चले जाएंगे, राइट। सामने वाला खुद जीतेगा, आप खुद जीतेंगे। अगर आप ऐसा गेम नहीं भी खेलते हैं तो भी हमारे गेम में ही कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, तो उस समय भी हम लोगों को वो क्या देना है? लव देना है, पॉजिटिविटी देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है, ग्रैटिट्यूड देना है। तो हर सिचुएशन में हम लोग को देना ही है। That is the time when our, cycle keeps changing. That is the time when what we are giving is coming back to us the most. उसी समय हमको उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हमने कभी कुछ दिया ही नहीं है तो हमारी लाइफ में जब हमको एक्चुअल में चाहिए तो वो घूम के आएगा ही नहीं। कैसे आएगा? हमको अब जैसे
बहुत अच्छा, आई थिंक हमारे भी उसमें ही शेयर किया था ना ग्रुप में, दैट वो चाय वाला एंड मिलिट्री वाला, दैट वाज सो नाइस, इट वाज शेयर्ड इन दिस ग्रुप ओनली ना, दैट वीडियो इसमें नहीं था क्या? सो मेनी, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ ओके, तो कोई दूसरे में होगा तो आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। इट वाज अमेजिंग, द स्टोरी वेंट लाइक दिस कि एक आर्मी का ट्रूप जा रहा होता है एक दूसरी आर्मी के ट्रूप को रिलीव करने के लिए इन कश्मीर और समवेयर, ठीक है, तो वो लोग बहुत घंटे चलते हैं एंड उनको सबको मन होता है कि कहीं पे एक चाय मिल जाए, या तो वो लोग देखते हैं एक चाय की शॉप तो है लेकिन उसका शटर बंद रहता है, ठीक है, एंड व्हाट दे थॉट कि नहीं हम लोग तो आर्मी मैन हैं, हम लोग कैसे मिलिट्री के लोग हैं, हम लोग खुद ही कैसे रूल्स डिफाई करें और तोड़ के अंदर चले जाएं चाय बनाने के लिए, बट द आर्मी मैन वर रियली टायर्ड एंड उनका जो मेन जन होता है लेफ्टिनेंट होता होगा, Yes, I remember. या इट वाज देयर ना, इट वाज सो अमेजिंग। तो जब आप सबसे ज्यादा जरूरी होता है तब अगर आप देते हो, ठीक है, दैट इज द टाइम व्हेन इट कम्स बैक टू यू आल्सो, या सो आई रियली लाइक दैट स्टोरी। एंड लाइफ में ऐसे ही होता है, जब हमने कभी दिया ही नहीं होगा तो जब हमको जरूरत होगी तो वो कैसे हमारे पास आएगा घूम के, ठीक है, सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन गिविंग। एंड जो क्या देना क्या है हमको, जो आप अच्छे हो, जो आपको मानो वो तो देना ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, आप पैसे, तन मन धन जो बोलते हैं उसकी सेवा, ठीक है, वो करना है हमको, और लव पैशन जॉय ये तो देना ही है, आपका जो बेस्ट है गिव दैट, ये भी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ऑल द रिचेस इन द वर्ल्ड कैन नॉट कम इवन क्लोज टू द मोस्ट प्राइसलेस गिफ्ट इन, जब तक हम आप जो भी काम कर रहे हो उसमें भी आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट विल take you to the next level, that is what we will take you to the next level and higher always, yeah, so let's read. Yes, Sangeeta ji, are you there? Acha, I was muted. Give the best of you. Give your love because it is the magnet to all the riches of life. And your life will become richer than you thought was possible. Because when you give love, you are fulfilling the entire purpose of your life. When you give love, you will receive back so much love and joy that you will feel it is almost more than you can take. But you can take unlimited love and joy because it's you, it's who you are. Yeah, so now when Rhonda Byrne is telling us give the best of you, तो आप सोच रहे हो कब देना है, ये हम तो हमेशा सोचते ही रहते हैं कि हाँ मेरे को ये गाने अच्छे लगते हैं, ये सॉन्ग अच्छा लगता है, जब से ये बुक करिए यही सब सोच रहे हैं, नहीं, वो सब तो आपको सोचना है, लेकिन आपको अपना बेस्ट कब देना है। इफ यू आर इन योर प्रोफेशन, आप अपना बेस्ट दीजिए, अगर आप घर पे हो तो आप अपना बेस्ट दीजिए, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जो आप चाहते हो आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए, फिर सामने वाला वो जो कर रहा है वो उसको मिलेगा, बट जब तक हम अपना बेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फलेस लव, जब तक हम अपना बेस्ट नहीं देना शुरू करेंगे हमारे लाइफ में वो चीजें नहीं आ पाएंगी, ठीक है, अगर मे बी इट्स योर स्किल, कोई आपको कुछ आप जो भी किसी और को सिखाएंगे, आपका जो बेस्ट पैशन है, आपको जो बेस्ट स्किल है, इफ यू स्टार्ट टीचिंग दैट इज व्हाट यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, दैट इज द टाइम व्हेन यू विल गेट द मैक्सिमम रिटर्न्स। आपको जो आता है आप उसको सिखाइए, ठीक है, अगर आप बोलते नहीं मेरे को कुछ भी नहीं, इफ यू लाइक कुकिंग teach cooking, if you like knitting, I don't know, you teach that, if you like drawing, आपको अपना पर्पस ऐसे ढूंढना अपने लाइफ में, you are, when you are giving, you are fulfilling the entire purpose of your life, okay, so when you start giving back to the society, okay, if not आप बोले नहीं कोई बात नहीं हमको नहीं देना है पैसे, अभी हमको मन नहीं है, जो भी है, you give your blessings, जो आप दे सकते हो you have to give back to the society, yeah. Someday, when men have conquered the winds, the waves, the tides, and gravity, we will harness for God the energies of love. And then, for a second time in the history of the world, man will have discovered fire. Perry Teilhard again. Teilhard. Perry Leonard T. Chardin, yeah. 1881 to 1955. Priest and philosopher. Yeah. So now आप देखिए इन्होंने कैसे बोला है, someday when men may have conquered the winds, आपको लगता है men कभी conquer कर पाएंगे winds, waves, tides and gravity? हाँ, tell me, कभी नहीं कर पाएंगे, हाँ, ये सारी चीजें कभी
कोई ह्यूमन नहीं कॉन्कर कर सकता है. सो नाउ दिस प्रीस्ट इज टेलिंग अस समडे, मतलब लाइक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है कि कोई एक दिन जब ह्यूमन बीइंग्स हम लोग इन सब चीजों को कॉन्कर कर लेंगे फॉर गॉड, या हम लोग गॉड, वी विल हार्नेस फॉर गॉड द एनर्जीज ऑफ लव. And then for a second time in the history of world, man will have discovered fire. तो ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये आप समझिए, ठीक है, कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं. और जब फायर डिस्कवर की थी मैन ने, ठीक है, तो उसके बाद जाके लाइफ चेंज हो गई थी, वरना उसके पहले क्या था? फायर की डिस्कवरी के पहले लाइफ कैसी थी? विदाउट सन गॉड देयर वाज नो लाइट, अंधेरा ही था. बिफोर फायर कैसी लाइफ थी? एकदम स्टोन एज टाइप की तो लाइफ थी ना, कि आदमी लोग जाते थे एनिमल्स को मार मूर के, जैसे भी खाते पीते होंगे, गॉड नोज वैसे ही रहते होंगे, स्टोन एज में तो वैसे ही रहते होंगे. उसके बाद जब फायर डिस्कवर की तब जाके लाइफ में और डिस्कवरीज और चेंजेस आने शुरू हुए. तो अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो ये तो सब हो चुका है, ये तो अभी होने ही नहीं वाला है. तो तब जाके एक्चुअल में समझ में आएगा कि यस, गॉड इज सो इम्पोर्टेंट. या सो इफ यू रीड इट इन हिंदी, किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे. तो इट्स लाइक देन वी विल यूज द लव ऑफ एनर्जीज ऑफ लव फॉर गॉड, या एज इफ हम लोग कितने महान हैं. और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा. सो इट इज टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ नेचर and God, which is like the sun god, and the energies of love. It's like you have to read it again to understand. Okay, so let's continue. You came into this world with your love, and it is the only thing you take with you while you are here. Every time you choose the positive, every time you choose to feel good, and you are giving your love, and with it you light up the world. And everything you can wish for, everything you can dream of, everything you love will follow you wherever you go. Yeah. You have the Continue. You have the greatest force in the universe within you, and with it you will have the amazing life. The power is within you. Yeah, so you came into this world with your love. जब हम लोग आए थे इस वर्ल्ड में, ऑफ कोर्स हमको तो याद ही नहीं था कि अपन कैसे आए थे, लेकिन जब आपने देखा होगा कोई न्यू बेबी आता है तभी वो आता है इस वर्ल्ड में, राइट? जब वो न्यू बेबी आता है तो वो क्या लेके आता है? आप बोलो नहीं, बहुत रोता भी है वो तो, भैया बहुत रोता है, सोने ही नहीं देता है, ठीक है, बट एक्चुअल में वो कैसे होता है? वो सो रहा होता है तो भी हंसता है ना, सोते सोते वो कभी रोने भी लगता है, बट मैक्सिमम टाइम तो वो अपनी दुनिया में रहता है ना. टिल दैट आई थिंक टिल 4-5 months तो उसको कुछ पता ही नहीं होता है, वो अपने ही एक जोन में रहता है, अपनी ही एक दुनिया में रहता है, स्माइल करता रहता है, हैप्पी रहता है, कभी हंसता भी रहता है ना. तो उस समय हम लोग जब दुनिया में आते हैं तो एक्चुअल में सिर्फ लव लेके ही आए हैं. वो जब सोल दूसरी बॉडी छोड़ के जब इस बॉडी में आती है और न्यू लाइफ बन के आती है इस वर्ल्ड में, तो वो अपने संग तो सिर्फ लव लेके है, उसने कुछ और बैगेज नहीं कलेक्ट किया यहाँ पे ना. वो किसी को नहीं जानती है, किसी से उसको माया नहीं, किसी से उसको मोह नहीं है. वो जब तुरंत आती है तो वो सिर्फ लव लेके आती है. एंड जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, व्हाइल यू आर हियर, हर जितने बार अपन सिचुएशन में पॉजिटिविटी एंड लव चूज करेंगे वैसे वैसे हमारी लाइफ अच्छी होती जाएगी. एंड नॉट जस्ट हमारी लाइफ, हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं, जिनको हम लोग हमारे लाइफ में मीट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, उन सब की लाइफ में अगर अपन वही लव हर टाइम देते रहें, देन लाइफ विल बी मैजिकल एंड एवरीथिंग यू लव विल फॉलो यू. अगर हम हर सिचुएशन में लव चूज कर रहे हैं, हम हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड चूज कर रहे हैं, तो जो हम चाहते हैं वो हमको फॉलो करने लगेगा wherever you go. Okay, so choosing love is so important, choosing positivity is so important, because that is how we were born in this world. Somewhere somehow we lost track of that positivity. Now the book has given us this chance to take it back, accept it, and choose love and positivity in each time, each situation, and then whatever we want, whatever dreams we have, they will follow us wherever we go. Yeah, and we have the greatest force in the universe within us. क्या हेवन आप बोलो, लव आप बोलो, जो कुछ भी आपको बोलना है, इट इज ऑल विद इन अस. और हमको करना क्या है, कैसे उसको यूज करना है, हर सिचुएशन में लव देके, हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देके. एंड द पावर इज विद इन अस. या विच इज दैट पावर?
द फोर्स ऑफ लव. एंड हम लोग ने जितना भी इसमें पढ़ा है, इन ईच एंड एवरी सिचुएशन वी हैव टू मेक दैट चॉइस टू चूज लव. Yeah. Yes, Sangeeta ji, the beginning. Yeah. So this is just the beginning, not the end of the chapter, not the end of the book. Today, after this session, is the beginning of our life. कि yes, power book finish हो गई है, but आपको choose क्या करना है? Will you choose this force of love to start this new life where love is following you, where everything you love is following you? You want to make that beginning? Yes. So this is what Rhonda Byrne is telling us, that after knowing that we have this power, let our life begin on a new scale and a new pace. Yeah. So let's read what. Just one second. So this is the power of love that is within us. Yeah. So let's read the points of power. Yeah. Yeah, Sangeeta ji, please unmute yourself. Sangeeta ji, have we lost her? I think we have lost her, no? I'll continue. तब तक आ जाएगी वो. Yes, please. You have always existed and you will always exist because you are a part of creation. आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं. It's like we as a soul will always be here because ये जो एनर्जी साइकिल है ये वरना ब्रेक हो जाएगा. ये हम हमेशा यहीं पे ही रहेंगे. जो भी it's like we have read it, right? हम लोग यहीं पे रहने वाले. जो भी आपकी इच्छा है. हम लोग ऐसे पढ़ते ना कि उसकी एक इच्छा थी इसलिए वो फिर से आएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. उसकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, वो आएगा ही आएगा फिर से. Right? Because this is the name of the law of the world. वो आएगा ही वापस because we are a part of this energy cycle, and if we are not back, then this energy cycle will collapse. Okay, so we will definitely come back in another body. Yeah. You, every person you know, and every person who has ever lived has no end. Yeah. आप आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता. तो अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई चला गया है, ठीक है, हमको छोड़ के, तो हम भी जाएंगे और हम लोग फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे ही हम लोग. दिस तो वी हैव रेड ना इन आवर स्क्रिप्चर्स. आप लाइक आई बिलीव इन दिस एंड आई एम श्योर आप लोग भी विश्वास करते ही हैं इस पे. सो दिस इज व्हाट विल एक्चुअली हैपन. आप देखिए ना, ये रॉन्डा बर्न हमको बता रही है जिनके स्क्रिप्चर्स में और उसमें बोलो उनमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होता है. Right now she is telling us which we already knew and it has been there in our scriptures always. Yeah. To find heaven on earth is to live your life at the same frequency as your being, pure love and joy. पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिएं, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी. It's like if we want anything, okay, है ना, it's like अगर बोलते हैं ना स्वर्ग यही है, जन्नत यही है, तो वो यही तभी है जब हमारी ड्रीम्स फुलफिल हो जाती है ना. जब हम जैसा चाहते हैं हमको मिल जाता है. और वो कैसे मिलेगा? जब हम पॉजिटिविटी में रहेंगे, जब हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तब वो हमको सब मिल जाएगा. तो अब दो चीजें हैं. एक, आप चाहते क्या हो, इस पे पक्का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम मेरे लिए ड्रीम्स कुछ और हैं लेकिन हम ऐसी फ्रीक्वेंसी में हैं और कुछ और अट्रैक्ट कर लें. ओके, सो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विच फ्रीक्वेंसी यू आर ऑन एंड व्हाट यू आर एक्चुअली वांटिंग to come to your life. Yeah. The greatest joy in life is giving, because unless you give, you will always be struggling to survive. जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे. इसमें आश्विनी मैम बोलती हैं, आई थिंक हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जो देवे वो देव. राइट? सो व्हेन वी आर गिविंग, नो मैटर इन व्हाट सर्कमस्टेंस वी आर. हम लोगों ने कितने हमारे स्क्रिप्चर्स में, आप रामायण में देखिए ना, वो शबरी अगर वो बेर भी दे रही होती है, राइट, तो वो कैसे दे रही होती है. हाँ, सुदामा अगर कृष्ण जी को वो चावल भी दे रहे होते हैं तो वो कैसे देते हैं. तो जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारे लाइफ में वो चीज आएगी ही नहीं. तो एक्चुअल में जो ग्रेटेस्ट जॉय है ना, अगर वो उसी लिए है कि जब हम देंगे देन ओनली वी विल गेट बैक इन रिटर्न. ओके, सो वी हैव टू. एंड जो भी सिचुएशन में आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ नहीं है तो आप ब्लेसिंग्स तो हम लोग दे ही सकते हैं ना. तो वी हैव लर्न दिस ना, कि आप जब नोट्स दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, आप
किसी को जो नीडी जन है, आपको उसको कुछ देने का भी, इफ यू डोंट वांट टू, देन एटलीस्ट यू कैन गिव ब्लेसिंग्स. दैट इज द लीस्ट वी कैन डू, बट वी हैव टू गिव इन एवरी सिचुएशन. या Your love, your joy, your positivity, your excitement, your gratitude, and your passion are the true and everlasting things in life. All the riches in the world cannot even come close to the most priceless gift in all of creation, the love inside you. आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं. संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती. सो इट्स लाइक दीज आर योर एक्चुअल जेम्स. ये आपका लव, जॉय, ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर द प्राइसलेस क्रिएशंस इन द यूनिवर्स. और जितना ज्यादा हम ये चीजें देंगे, जितना ज्यादा हम ये चीजों इस जोन में रहेंगे, उतना ज्यादा हमारी लाइफ अमेजिंग होने वाली है. क्या Give your love because it is the magnet to all the riches of life. या अपना प्रेम दें क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है. सो द मोर वी गिव लव, the more amazing and magical our life will be, because this is how we become the strong magnet to attract riches in our life. Yeah. While you are here, every time you choose the positive, every time you choose to feel good, you are giving your love, and with it you light up the world. Yeah. इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करना का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं. इट्स लाइक व्हेन यू आर चूजिंग टू गिव लव, not just you, everything around you, everyone around you will light up with this force of love. Okay, so let's read this, just one more thing. Yeah. May the power bring you love and joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us, may the power. Okay, so if you feel that it is the book, yeah, or if you feel it is the force of love, that is the actual power. She is wishing that this book or this force of love brings you love and joy for your entire existence, and that is her intention for you and for the world. जब उनका बिलीफ ही यही है, उनका इंटेंशन ही यही है, जब उनका इस बुक को लिखने का उद्देश्य ही यही है, तो तभी वो तो आज इतनी फेमस, इतनी पॉपुलर होगी कि उनका रीजन कितना अच्छा है इस बुक को लिखने का, राइट? या सो let's read about Rhonda Byrne and their gratitude to her once more. Yeah. About the author. Rhonda Byrne's intention is joy to billions. She began her journey with the Secret film, viewed by millions across the planet. She followed with The Secret Book, a worldwide bestseller now available in 46 languages. Now with The Power, Rhonda Byrne continues her groundbreaking work as she reveals the single greatest force in our universe. Yeah. Yes. Okay. That's it. Yeah. This was the end of the book. So thank you, Tulsi, and thank you, Sangeeta ji, for reading all of us. Yeah. Thank you. पल्लवी जी थी, लग रही थी मुझे, क्या उनके पीछे कोई बैकग्राउंड था? नहीं, रमा काबरा थी. Seriously, Rama ji. Awesome, Rama ji. This was too. I planned this. Ah, you planned this. Awesome. Yes, definitely. Why not? और देखिए, आप इतना सीरियस डीपी लगा के ऐसा करेंगी तो बड़ा अच्छा लग रहा है. अच्छे तो लग रहे हैं, but it's like, you know, so Earphones are Okay, here I am. Yes, wonderful. So happy. Yeah, excellent. So it was a wonderful 27. Thank you, Priya. Wonderful. Thank you so so much, much. Priya. Thank you, Priya. Thank you. It was wonderful time with you. Thank you so much, Priya. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Priya ji. Thank you. Thank you. तो अच्छा, नहीं, सॉरी, अभी रुकिए, ऐसे नहीं कर सकता है. अभी बताइए कि इस बुक से कौन सी चीज, एटलीस्ट 2 बता दीजिए, 2, ठीक है?
कौन सी 2 बातें हैं जो आप कल से फॉलो करते रहेंगे? ओके, वेदर नॉट इन द मैजिक, अपार्ट फ्रॉम द मैजिक की जो प्रैक्टिसेस इसमें दी हुई हैं, उसके अलावा कौन सी 2 चीज आप करेंगे ही करेंगे फॉलो? टेल मी दैट. Giving love. 7-minute visualization and wild horse. Visualization. Wonderful. Yes. And what else? अब सब लोग का सेम 2 नहीं हो सकता, कोई तो कुछ और भी करेगा ना. हाँ, एक साड़ी सबको थोड़ी अच्छी लगती है, बताइए, है ना? साड़ी की शॉप बहुत अच्छी लगती है. क्या? Full time positivity. 70% positivity. Yes, 70% positivity. Yes, that is good. Yeah. And your biggest dream is only a dot for the universe. Yes, yes, very good. ये तो बहुत अच्छा है. Yeah, yes. तो आपको वो जब ऐसा कुछ लगे तो you have to look at it. आपने वो बनाया हुआ है ना? Yeah. Yes. Circle. Very good. Very nice. So many of great you- symbol बनाना. हाँ, symbol बनाना. हाँ, आपका बन गया ना छाया जी? Always be on the above line. Yeah. मेरा हमेशा सही ही था. हाँ, आपका तो था कला जी. Yes, yes. अभी पता चला कि ये सीक्रेट सिंबल है, लेकिन हमेशा थे. हाँ, very good, very nice. And और बताइए आप लोग और क्या करने वाले हैं? सीक्रेट सिंबल. Try to remain positive. Yes. At least 51%. नहीं, at least 70. 70%. 70%. जब Yes. 70 टारगेट करेंगे, 70% कितना घंटा होता है? लाइक समवन कैलकुलेटेड, हमने 50 तो कर लिया था. 8 hours माने दिन में 8 hours आपको पॉजिटिव रहना है. ठीक है? प्रिया, एक बार तो मेरे को वो टिपिंग वाला रिमाइंड कराओगी क्या? माने क्या? पूरा Not पूरा, on short. शॉर्ट मतलब देखिए, मतलब आपको दिन में मैक्सिमम टाइम हैप्पी रहना है, मैक्सिमम टाइम आपको अबव द लाइन रहना है. वो इसलिए रहना है कि अगर आप अबव द लाइन नहीं रहोगे तो आपका जो मैग्नेटिज्म है वो कम हो जाएगा. आपका मैग्नेटिज्म कम होएगा तो आप जो चाहते हो, अच्छी चीजें, अच्छी सिचुएशंस, अच्छे लोग आपके पास कम आएंगे, राइट? कम अट्रैक्ट होंगे. अगर आप नेगेटिविटी में रहोगे तो आपके पास नेगेटिव चीजें आएंगी, नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी. इसलिए हम लोग को अपना टिपिंग पॉइंट माने वो जो बैलेंस है वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ झुका के रखना है. ओके, व्हेन यू आर फीलिंग बिलो द लाइन, आप हो सकते हो बिलो द लाइन, बट दिन में मैक्सिमम टाइम आपको माने वो बैलेंस में हमेशा पॉजिटिविटी ज्यादा रहनी है, सो दैट वो पॉजिटिविटी वाला तराजू का साइड इधर झुका रहे. ठीक है? दैट वे. अपने पास जो अच्छी चीज है वो अपने को देना है, सबको बांटना है. प्यार हो, खुशी हो, कोई अच्छी क्वालिटी है, कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, नॉलेज है. हाँ, बिल्कुल. वेरी नाइस. हाँ, ये आज के चैप्टर में था. टू शेयर व्हाट यू लव, टू गिव द बेस्ट ऑफ यू. यस. या द बेस्ट ऑफ यू. Yes. यस. एंड और बताइए, और आपने क्या सीखा? Don't struggle to change the circumstance. Yes. Yes. Just don't focus on it. Change your frequency and change. Yes, very good. But अब हम लोग उसको अप्लाई करना कैसे? आप लोगों ने कर लिया, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, right? Yes. Yes, very good. And बीच में ना, जैसे आपने वो 5 चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट की थी, या कभी ऐसा लगे ना, वो खोल के आप वो फिर से वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है? देन यू नो कि यस, नहीं, वो अगर आ रही है मतलब कि आपकी ड्रीम्स भी आ जाएंगे. अच्छा, एक और चीज, जब आपको लगे कभी, सी बेस्ट इज टू रीड दिस बुक ऑन एंड ऑफ, यू नो, पूरा में. ठीक है? अदरवाइज व्हेनेवर यू फील आपको रिलेशनशिप पे वर्क करना है, जस्ट गो थ्रू द रिलेशनशिप चैप्टर. मनी का वाला करना है तो गो थ्रू द मनी का चैप्टर. हेल्थ का करना है वो तो आई थिंक करते ही रहना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है? अगर ये सब भी नहीं लगे कि मेरे को इतने सारे पेजेस नहीं पढ़ने, तो व्हेनेवर यू Points of power. पॉइंट्स ऑफ पावर, अदरवाइज यू जस्ट ओपन द बुक. ठीक है? जो पेज आपके लिए खुला है, मतलब वो कोइंसिडेंस नहीं है कि वो पेज खुला है, राइट? यू जस्ट रीड दैट चैप्टर और आपका थोड़े दिन के अंदर दिस यू हैव टू फील. आई हैव फेल्ट दिस विद द सीक्रेट बुक मेनी टाइम्स. माने जब हमको ये सब कुछ नहीं पता था कि कोइंसिडेंस होता है, कि ऐसा कुछ होता है, कभी भी हमको ना कभी पढ़ना है कुछ, तो आई वुड ओपन द बुक एंड जो मेरा क्वेश्चन होता था या जो मेरा डाउट होता था वही पेज काइंड ऑफ जाके, अक्सर वो रिलेशनशिप पे ही खुल जाता था वैसे, बट मैक्सिमम टाइम उसी पे खुलता था. लाइक 2 pages ओपन अप ना, राइट? व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द पेज यू विल सी, मेरा तो यही डाउट था,
और यही आज मेरे को इसका आंसर यहाँ पे मिला है. ओके, सो Priya ji, if you have any dream, we have to gather the props. yes, you have to gather the props. तो आपको करना, अच्छा विजन बोर्ड, सब लोग Vision विजुअलाइज board, props, yeah. आपको विजन बोर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो 5 चीजें हैं जिससे ड्रीम्स मिलती हैं हमको. 1 इज थ्रू राइटिंग, आपने अपनी ड्रीम लिखी, ठीक है. 1 इज थ्रू लिसनिंग, आपको अपनी ड्रीम जोर से पढ़ना है या रिकॉर्ड करके उसको सुनना है. 3rd इज थ्रू सीइंग, ठीक है. सीइंग आप कैसे देखोगे अपनी ड्रीम? हाँ, आपको विजन बोर्ड में प्रॉप्स यूज करके वो देखना है. विजुअलाइजेशन तो आपका अंगूठा है. इट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव योर ड्रीम्स. ओके, बट हर टाइम अगर आप नहीं कर रहे हो विजुअलाइजेशन, तो ये बाकी 4 चीजें लिख के, सुन के, पढ़ के और देख के, ये चारों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यू हैव टू डू दिस टू अचीव योर ड्रीम. ओके प्रिया, एक चीज पूछनी थी यहाँ पे. इन विजुअलाइजेशन जैसे इट्स रिटन ओवर देयर कि वन ड्रीम, एनी टॉप वन ड्रीम. या यस, I mean, मेरा जब होता है तो I generally the whole thing, everything comes in, you know, like all of them, like it's connected naturally to me or to my family or thing. हाँ, कोई You know, प्रॉब्लम. everything comes in together. I mean, naturally then it comes in as in a whole, everything is in a perfect state and सब हो गया अच्छे से and whatever direction में. So is it okay like? Yeah, it is perfect. It is perfect. Fine. That means it is like, you know, like a project tiger. जैसे आपको बोलते ना कि सोने की चम्मच से आप पोते को खिला रहे हो. It is like that. Yes. वही है क्या ड्रीम आपकी? Including, yes. तो बस, तो बहुत अच्छी बात है क्या? अपनी लड्डू मुर्गी मान लो और हाँ, बांटेंगे आएगा, वो समय भी आएगा. Yes. Yes, so it is like that. Yeah. Okay. Priya, I have a sharing. Oh yes, wonderful. And so many of, आज हम पहली बार अभिलाषा जी को I think I'm seeing for the first time. Yes. Yeah? Yes. Yes, Ruchi, let's hear your sharing. Yeah. Yes, another my second magic check materialized, and I'm very, very happy. Wow. So Good, yes, yeah. I had to, and this time my first one was for my pup, that I got my Tapu in my life, and the second one I had written a bigger amount, and I had written it for my school. For I had to get some particular furniture for my school and some play equipment, and I'd written an amount of 1 lakh, and it got materialized, and I earned this. Awesome. Wow. Wonderful. Congratulations. Great. Thank you so much. Thank you from the bottom of my Thank heart. Thank you to this magic book. Thank you to this journey. My life is just not been the same for the last few months. Wonderful. Thank you, More and Tulsi, more once magic. again. More and more magic to you. Congratulations. Okay. Yes. Thank Excellent. you, everyone. Yeah. So I'll miss all of you a lot. Yeah. It's like, you know, for the past 1 month, Yes, we've been Tulsi. connecting and नहीं, this feeling लगता नहीं है is तुलसी. awesome. Just 1 month we were connected. It looks as if बहुत दिन से we were connected. Yes, Kalaji. Yes. एकदम ऐसे ही लग रहा है एकदम. We'll miss you too, Priya. Yeah. Yes. I will also miss you. And hope you start a new session very soon. It's not hoping. Priya will start a new session very soon. That is the manifestation. I always wanted Priya to start power. वो आ गया. I'm sure फिर मिलेगा ही मिलेगा. बट अभी तो देखिए ऑलरेडी आप लोग आई थिंक पायल और मिकी, पायल और वर्णा कर रहे हैं मैजिक बुक, राइट? So if I do magic, I was thinking more on the terms, you know, like का शुरू करना चाहिए. I was just thinking that nothing has been, you know, ऐसा कुछ सोचा नहीं. जैसे पिछले बार मैजिक खत्म होते ही हमने बोल दिया था कि हाँ पावर कर रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, राइट? But this time अभी I have not thought anything. Maybe after 10 days of you can start with mirror work. Mirror work, I have to practice it a little, then I'll be able to start it. Okay, that is in the pipeline. So let's see. Yeah, yes. So something which Well said, Shipra. What Shipra is saying we won't miss her because she'll be taking the new session. But won't you feel magic में like what else can I add? It's like the same book ना. Yeah, and I have the same life अभी तक तो है ना. So what else? Maybe continuation में रहना is important ना प्रिया. Not doing अपने a आप set. होता नहीं है. हाँ.
अपने आप होता कंटिन्यूएशन नहीं। में होता नहीं, हाँ किसी के साथ सबके साथ हो Priya, जाता I है। think you should start the magic helpful. book again. I missed a lot on power, so we have to do power also again after that. Oh my God. So for Rupali, you have to do So Priya. everybody will be in practice. The time you start the session, we can do a practice. Maybe like every Saturday we meet for 15 minutes or something like that. Once a week and do the sharings and everything, how we are practicing or something. That we, I think that is cool. वो sharing के लिए I don't think बहुत लोग आएंगे, but we can do it. Yeah. We can be positive. लोग आएंगे. Don't say हम that. आएंगे, Yeah, of course आएंगे। Please, बिल्कुल आएंगे। Okay, okay, yes, and we अरे can पॉजिटिव enjoy it. एनर्जी लेनी है, आना तो है। Okay, okay. So thank you everyone, like all of you, like thank you so much. आप लोग रोज इतना लेट होता है फिर भी आके एकदम like you know बहुत बहुत अच्छा लगता है हमको. Thank you so much. सब बहुत याद आएंगे, सब बहुत याद आएंगे। प्रिया जी बहुत याद आऊंगी। Priya, gratitude till किया अभी। हाँ, yes, thank you. Yeah. So We miss you all. So I'm just making more active. Yeah. So let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank The great Almighty and the wonderful elements of nature. Thank you for bringing us this wonderful and amazing book from Rhonda Byrne. Thank you for teaching us the amazing how we can attract all our desires and dreams in our life. Thank you for making me realize the importance of friends, family, health, and all the luxuries that I have received. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, Priya ji. Thank you, Thank thank you, Priya. God bless you. Priya. Amazing session, amazing Priya, session. you wanted to click picture. Yes, one second. Please आप लोग सब लोग अपना कैमरा दीपिका मानसी जी yes, okay. I'm also taking Echo. yes echo हो रहा था done. I've taken. Thank you for the first time in this. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you, Priya ji. See you Thank again. you, Priya ji. Love you all. Thank you. Bye. Priya. Thank you, Priya.